Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Now we are starting it here with epidemiological methods. Before that, we have discussed about the epidemiology, definition of the epidemiology. Then we have discussed how to study the. In very first lecture, we have started with how to study the epidemiology. Then the second lecture was on the descriptive epidemiology. Then the third lecture was here only for the GMC students. This is also on the descriptive epidemiology. We have discussed various steps of the epidemiology, defining the population to be studied, defining the disease to be studied, describing the disease by time, by place, by persons, then how we are measuring the disease and how we are making the comparison, and then lastly we are formulating the hypothesis. We have discussed much. Today we are discussing about the epidemiological methods. Epidemiological methods. The primary concerns of the epidemiologist is to study the disease occurrence in a population. Means what? The primary concern उसकी वाबस्तगी epidemiologist की क्या है? To study the disease occurrence in the people. Epi means above, demos means public, logi means study, which is the primary concerns of the epidemiologist is to study the disease occurrence in the people which is exposed to the numerous factors and the circumstances to explore the disease etiology. Means क्या है? To investigate the cause. Means इसकी चेन कहाँ जाती है डिजीज की, इसका रिलेशन क्या है? जैसे हम कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, मास्क करते हैं, हैंड वॉशिंग करते हैं, तो क्या है? इसकी एक चेन है, हम चेन को क्या इंटरप्ट करते हैं? जस्ट दिस इज टू इन्वेस्टिगेटिंग द कॉज एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, कैसे डिजीज होती है. Epidemiological studies can be classified as observational study and the experimental study. Epidemiological method. Listen beta carefully. The primary वाबस्तगी epidemiologist की ये है कि disease कैसे community में होती है, उसको कौन से factors हैं जो interrelated होते हैं, कौन सा environment है, the things which are external to that, कौन सा उसको explore करना है, किसको? etiology को. It means there is the investigation of the cause and natural history of the disease. Natural history of the disease means starting milestone of the disease, how the disease is occurring. Number one is the pre-pathogenic phase, then the pathogenic phase. The epidemiological study can be classified as the observational study and the experimental studies. Already we have discussed. This is third time I am describing to you it here. One is a observational study. Other is the experimental studies or intervention studies. Means इसमें हम intervene करते हैं. Only at here we are observing the scenario of the disease. So again, the observational study may be a descriptive study, number one, descriptive study, and other is an analytical study. Descriptive study from home by study of the pattern of the disease by time, by place, by persons. We are formulating the hypothesis. Then analytical study. Analytical study हम उसमें analyze करते हैं, तजिया निकालते हैं. जैसे क्या है? Study ecological study है और इसमें हम correlation बताते हैं कि status इस population का कैसे है, A population का, B population का status क्या है. But the population is a unit of the study. Then the other is the cross-sectional study or prevalence study. Today, coronavirus is a cross-sectional study, prevalence study, with individual as a unit of the study. Number third is a case control study as case reference study, with the individual as a unit of the study. I mean to say cases. And number four is the cohort study or the follow-up study, individual as a unit of the studies. Later on, we are segregating all these studies and discussing. Then there is the experimental studies.
means we are performing the experiments at randomized control trials. There are the field trials, community trials में drug देते हैं, field trials में देखते हैं कौन सी वैक्सीन कैसे है, और रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल लेबोरेटरी में देखते हैं तो कैसे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं कि कोई प्लेसिबो होता है, किसी को कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, फिर उनके नताइज के पीछे होते हैं तो क्या क्या हमें रिजल्ट मिलता है. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल स्टडी. तो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड क्या है बेटा? एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में एक है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंटल ट्रायल. ऑब्जर्वेशनल स्टडी में पहले तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, उसके बाद एनालिटिकल स्टडी है. एनालिटिकल स्टडी में क्या क्या है? एक तो इकोलॉजिकल स्टडी है, कोरिलेशन स्टडी है, हम कोरिलेट करते हैं स्टेटस ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन एज कंपेरिजन टू द एशियन पॉपुलेशन, कंट्रीज ऑफ एशियन पॉपुलेशन. एक कंपेरिजन बनाते हैं उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है. दूसरा है क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसको हम प्रिवेलेंस स्टडी बोलते हैं. नंबर तीसरी है केस कंट्रोल स्टडी. फोर्थ इज द कोहॉर्ट स्टडी. Now we are discussing about the cross sectional study. Cross sectional or prevalence study and observational study. This is क्या है? An observational study है. It is based on a single examination of a cross section of the population and one point in time. कोई भी एपिडेमियोलॉजिस्ट जाएगा किसी पॉपुलेशन में, वन पॉइंट इन टाइम एक मरतबा जाके सर्वे करेगा, उधर देखेगा तो भाई कोविड में कितने मरीज हैं, कोविड के बगैर कितने मरीज हैं, ऐसे ही एक सर्वे है, उसका सर्वे करेगा. दिस इज कॉल्ड एज अ cross sectional study, one point in the time. Are you getting my point or not? Hello students, hello, are you getting my point beta? Yes sir, yes sir, we are getting. May kindly interact with me. Okay, cross sectional study and observational study, it is based on the single examination of the cross section of the population at one point in time, the result of which can be projected on the whole of the population provided the sampling has been done correctly. Cross-sectional study is also known as a prevalence study. Prevalence means burden of the disease over the community. Means old and new cases. This is called prevalence. Means जैसे अभी कोविड का prevalence है, ठीक है? So cross-sectional studies are useful for short-lived disease. In a study of the hypertension, we can also collect the data during the survey about the age, sex, physical exercise, body fat, salt intake, and other variables of interest. Epidemiologists examine the relationship between the disease or on its precursors and other variables is to attempt to establish a causal change so given the lead to the possible way of prevention of the disease. बेटा इसका मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का, कोई किसी गांव में कोई पॉपुलेशन है, हम उधर जा रहे हैं, उधर देखते हैं कि उस जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो हम जाएंगे वन पॉइंट इन टाइम जाके सर्वे करेंगे, उनका एज के हवाले से सर्वे करेंगे, सेक्स के हवाले से सर्वे करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज के हवाले से सर्वे करेंगे, उसका बॉडी वेट के हवाले से सर्वे करेंगे, बॉडी वेट के हवाले से सर्वे करेंगे, और तीसरा उसका सॉल्ट इंटेक का हम सर्वे करेंगे और डाइट का सर्वे करेंगे. हम उनका मतलब एक टाइम जो डाइट है उसकी पिछले 8 दिनों की या 10 दिनों की डाइट देखेंगे तो उसमें प्रोटीन कितना लेते हैं, उसमें नमक कितना है, कैसे है उनका वेट, फिर हम उस पर सर्वे करेंगे. को देखा क्या कि इस पॉपुलेशन में क्या था कि सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा थी, उसमें जब भी कोई डाइट लेते थे उसमें साल्ट वो ज़्यादा इस्तेमाल करते थे. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हमने एक रिलेशनशिप निकाली किसकी, साल्ट की डाइट के हवाले से, साल्ट की उस पॉपुलेशन से, कि भाई ये पॉपुलेशन साल्ट इंटेक ज़्यादा लेती है, तो क्या क्या हमने ऑल ऑफ सडन उनकी जो है ना साल्ट को हमने उतरा या डिक्रीज किया, तो फिर उनके नतायज हमने देखे बाद में कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता आ गया. इट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप ऑफ द डाइट विद द salt. So this is called cross-sectional study, one point in time. The epidemiologist examine the relationship, interrelationship between the disease or its precursor and other variable of interest.
ये क्या है, ये वन पॉइंट इन टाइम हम स्टडी करते हैं, उसमें सारी सर्वे हम देखते हैं, सर्वे करके हम निकालते हैं कि उनका रिलेशनशिप चेंज से किससे जा रहा है। अभी आप देखें बेटा, सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पर नहीं है और मास्क यूज जहाँ पर नहीं है, प्रॉपर एसओपीज पर नहीं चल रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं, जो उधर देखें तो कोविड के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हैव यू गॉट माय पॉइंट समथिंग? हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? हेलो हेलो? Yes, sir. 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 हाँ, yes. तो एक क्या Yes, हो sir, गई, we are getting. एक सर्वे हो गई, हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप। एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या देखता है, इन्वेस्टिगेट करता है तो भाई इसकी चेन कहाँ जा रही है। जब उनका चेन का हमें पता पड़ेगा कि ये साल्ट इंटेक से ब्लड प्रेशर होता है, तो हम क्या करेंगे, साल्ट कम कर देंगे, तो उस कम्युनिटी में ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। दिस इज बाय द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज प्रिवेलेंस, बर्डन ऑफ द डिजीज कम्युनिटी में। इट प्रोवाइड्स अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, इसमें हमें लिटिल इंफॉर्मेशन है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का पता नहीं पड़ता है कि इसकी कैसे शुरू हुई, और न्यू केसेस का भी इनका हमें इंसिडेंस मतलब कैसे होता है उनका भी हमें पता नहीं पड़ता है। तो ये एक मतलब क्रॉस सेक्शन हम स्टडी करते हैं टाइम किंग के लिए। क्रॉस सेक्शन स्टडी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज प्रिवेलेंस. It provides a very little information about the natural history of disease or about the rate of occurrences of the new cases or the incidents. Incidents means occurring of the new cases. वो इंसिडेंट्स तो होता है, रेट का हमें पता नहीं पड़ता है कि ज्यादा इंसिडेंट्स है या कम है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी में नहीं पता पड़ता। इंसिडेंट्स का पता ज्यादा से ज्यादा हमें क्वांट स्टडी से पड़ता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। नाउ एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी, वी आर गोइंग टू What's the analytical epidemiology? क्रॉस सेक्शनल जो स्टडी है बेटा, सारा हम टाइम प्लेस पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन से हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा है एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। देखें, इन डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी द एंड रिजल्ट ऑफ द स्टडी इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। भाई पैटर्न ऑफ डिजीज का हम फॉर्मुलेट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। एंड इन एनालिटिकल epidemiology the proceeds further and test this hypothesis. भाई एक हमने hypothesis बनाया डिस्क्राइब करके, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन की, डिफाइनिंग द डिजीज अंडर स्टडी की, डिस्क्राइबिंग द डिजीज बाय टाइम, बाय प्लेस, बाय पर्सन्स। उसका हमने पैटर्न देखा डिजीज का कि कम्युनिटी में कैसे जा रही है। फिर हमने उसकी मेजरमेंट की इंसिडेंट्स और प्रिवेलेंस से, तो कैसे भाई इसका इंसिडेंट्स कितना न्यू केसेस आते हैं, बर्डन उसका कितना है। उसके बाद हमने क्वेश्चनर के थ्रू उनसे मतलब कोई हिस्ट्री ली, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ कंपैरिजन की कि भाई इस पॉपुलेशन में ज़्यादा डिजीज क्यों होती है, उसमें नहीं होती है, थोड़ी हमने कंपैरिजन की। उसके बाद क्या हमने एक फार्मूलेट बनाया, हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस बना के अभी हम क्या करेंगे भाई, इसको टेस्ट करेंगे कि इसका चेन इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो इस हाइपोथेसिस की चेन किससे जा रही है कि ये डिजीज कैसे एग्रीवेट होती है। जैसे ऑलरेडी आई डिस्कस, तो सॉल्ट इनटेक ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क यूज नहीं होगा, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो it is established whether or not the association exists between the disease and suspected factor, and if does होती है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो हम क्या करते हैं, एनालिटिकल स्टडी में स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इसकी जो सिगरेट स्मोकर हैं, सिगरेट स्मोकर में कैंसर ज़्यादा क्यों होती है, नॉन स्मोकर में क्यों कम होती है। तो इसकी एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है वो क्या, इसमें एनालिटिकल स्टडी में हम करते हैं। तो बेटा क्या है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। इन डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी द एंड रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, एंड एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी प्रोसीड्स फर्दर एंड टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। उस हाइपोथेसिस को
assumption को हम टेस्ट करते हैं, it established whether or not, उसमें हमें पता रखना है कि whether or not an association exists between disease and suspected factors, and if does it strength of this association, this is called as statistical significance. भाई तो इसमें क्या है कि सिगरेट स्मोकर जो हैं वेदर इसकी सिगरेट स्मोकिंग की कैंसर के साथ एसोसिएशन है या नहीं है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, ठीक है, अगर है तो कितनी है, उसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या है. एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी और स्टडी प्रोवाइड्स व्हाई and how of the health events of diseases to be occurring. Analytical epidemiology of study. Hello, please. Hello. Analytical epidemiology or study provides why and how of the health event or disease. ये health event. Analytical studies कौन सी हैं बेटा? Analytical study, तजिया करने वाली study comprising of the two distinct type of the observational study. दो observational studies हैं. One is a case control study, other is a cohort study. Number first क्या है बेटा? Case control study. Cases, case एक patient या disease, एक उसका हम control बनाते हैं. Control same age, same sex और same मतलब हैबिट्स, उसका एक कंट्रोल बनाते हैं, नॉर्मल बंदा, ठीक है. और दूसरा केस, इसको कंपैरिजन करते हैं. कंपैरिजन करके हम देखते हैं भाई इसको कैंसर क्यों हुई, इसको कैंसर क्यों नहीं हुई. तो उसका एक रिलेशन है. स्मोकर था, ये नॉन स्मोकर था. भाई स्मोकर था तो उसकी पिच इंटेंसिटी स्मोकिंग की कैसे थी, भाई 30 सिगरेट पर डे पीता था, 20 ईयर्स का मतलब इसका एक्सपोजर था, तो उसमें 10% को कैंसर होता है. दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी. नंबर सेकंड इज अ कोहॉर्ट स्टडी, एक ग्रुप स्टडी है. 10 साल के लिए, 5 साल के लिए ग्रुप में हम देखते हैं. तो ये फॉलो अप हम करते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, फॉलो अप हम करते हैं कई भाई कैसे पैटर्न में ये स्मोकर है या कोई इसको तकलीफ है, तो कैसे ये डिजीज को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे डिजीज होती है. हम इसको इंसिडेंस स्टडी हम उसको कहते हैं. लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है. Analytical studies comprising of the two studies, two observational studies. One is a case control study, एक केसेस हो गया, डिजीज हो गई. दूसरा कोहॉर्ट फ्री ऑफ डिजीज, हम उसको फॉलो अप करेंगे कैसे उनको कैंसर होता है, फ्री ऑफ डिजीज है, ठीक है. कोहॉर्ट स्टडी, कोहॉर्ट मीन्स ग्रुप. फिर हम ईच ऑफ दीज स्टडीज, दोनों स्टडी वन कैन डिटरमाइन, हम उधर से डिटरमाइन करते हैं वेदर और नॉट स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट, के कैलकुलेशन के हवाले से एसोसिएशन रहती है या नहीं रहती है. वो तो सस्पेक्टेड कॉज, स्मोकिंग की कैंसर के साथ एक स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन रहती है. अगर इफ वन एग्जिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, अगर वो रहती है तो उस एसोसिएशन की ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. तो इसमें हम किस में देखते हैं बेटा? केस कंट्रोल स्टडी में और कोहॉर्ट स्टडी में. वेदर और नॉट स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन एग्जिस्ट, पहले तो हम ये देखेंगे तो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, अगर करती है तो कितनी करती है, अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है. सो दिस इज द डायग्राम, माय सन्स एंड डॉटर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन. दिस इज फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, सिगरेट स्मोकिंग इफेक्ट, कॉज लंग कैंसर्स. दिस इज disease occurrence over the time, effect, direction of the inquiry at here, this investigation, direction of the inquiry at here, effect, smoker, what happens causes lung cancers. There are the two populations. One is the cases, other is the control. They are the exposures and there is the नॉन एक्सपोजर, ठीक है. दूसरा है इसको भी एक्सपोजर है, कंट्रोल में भी एक्सपोजर है और केसेस में भी एक्सपोजर है. तो हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे केसेस को और कंट्रोल को. कंट्रोल मींस पीपल्स विदाउट डिजीज, केसेस मींस पीपल विद डिजीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? Yes, sir. हेलो,
Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, We are sir. getting you. Really or not? Now we are Yes, discussing sir. Yes, sir. about the case control Absolutely study. correct. केस कंट्रोल स्टडी में हम Yes, दो yes, sir. पॉपुलेशन होती हैं, एक केसेस होते हैं, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है. कंट्रोल ग्रुप मींस विदाउट डिजीज और केसेस विद डिजीज. केस कंट्रोल स्टडी की माना ये है. क्रॉस सेक्शनल स्टडी और प्रिवेलेंस स्टडी की माना क्या है? आप जाएंगे कम्युनिटी में, जाके उधर वन टाइम जाके क्रॉस सेक्शन लेंगे, उसके क्वेश्चनर बना के उसका. लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं केसेस में और कंट्रोल में. तो भाई ये जो केसेस हैं इनको डिजीज क्यों हुई, कंट्रोल वालों को डिजीज क्यों नहीं हुई? दिस इज कॉल्ड एज द केस कंट्रोल स्टडी. Later on we are discussing in detail. This is the definition of the case control study. Case control study, this study is undertaken on individuals who have already contracted the disease. It proceeds backwards, i.e. effect to cause. Effect to cause. That is exposed, so-called as a retrospectral study, often called a retrospective study, or a common first approach to test the causal hypothesis. Case control method has three distinct features. भाई क्या है? Retrospective study है. Common first approach to test the causal hypothesis. लंग कैंसर के हमारे पास पेशेंट आ गए, ठीक है ना? सिगरेट स्मोकिंग की मतलब हवाले से लंग कैंसर के पेशेंट आ गए, तो कैजुअल हाइपोथेसिस वो लंग कैंसर हम रखेंगे, उससे कंट्रोल ग्रुप को मतलब कंपैरिजन करेंगे. क्या है? इफेक्ट टू कॉज. इफेक्ट स्मोकिंग थी, कॉज क्या हुआ? लंग कैंसर हुआ. तो इसको हम कैजुअल फैक्टर को मतलब कॉज को हम इसमें डिस्कस करते हैं. This is the basically study of the two populations. One is the cases with disease, other is the control without disease. ठीक है ना? अभी इसके फीचर हैं. कोई भी हम स्टडी हम करते हैं तो उसके लिए केस कंट्रोल मेथड से 3 इसके फीचर्स हैं. ये ध्यान में रखें. तो ये स्टडी कहाँ पर होती है? जब ये 3 बातों को आप 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 चीजों को अगर आप ध्यान में बेटा रखेंगे तो आप केस कंट्रोल स्टडी समझेंगे, अदरवाइज नॉट एट ऑल. तो भाई क्या है 3 चीजें? बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम. डिजीज हो गई बिफोर द अकरेंस स्टार्ट ऑफ द स्टडी. भाई लंग कैंसर वाले हमने केसेस ले लिए हैं. बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम अकर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ डिजीज. क्या लिया बेटा हमने? एक पॉपुलेशन ली, एक पॉपुलेशन ली केसेस की, एक पॉपुलेशन ली कंट्रोल की. ये केसेस हो गए, ये कंट्रोल हो गए. उन्होंने आप ही देखो सब क्यों आप ही देखो आप ही दे दे तो भाई आपको कहते हो जो कोई भी दे. डिस्कसिंग एट हियर द केस कंट्रोल स्टडी. डिजीज केस कंट्रोल स्टडी हम करते हैं. डिजीज केसेस और दूसरा कंट्रोल हम पॉपुलेशन गए. हाँ देखें केसेस के लिए क्या है? बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी. भाई क्या है? इफेक्ट टू कॉज हो गया. क्या है? इफेक्ट टू कॉज. तो हम कॉज को डिस्कस कर रहे हैं क्या? ठीक है. बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम अकर्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी. ये The study proceeds backward from effect to cause. हम हिस्ट्री लेंगे. Effect to cause. It uses a control group, comparison group, support our inferences. तो भाई क्या है? ये एक स्मोकर थे, ठीक है. ये एक नॉन स्मोकर था, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नॉन स्मोकर में ये डिजीज लंग कैंसर क्यों नहीं हुई, मतलब कम क्यों हुई, और इसमें क्यों ज्यादा हुई. तो एक हम स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे. उस कैलकुलेशन के बाद हम देखेंगे तो इसमें स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है, पावर कितना है. तो केस कंट्रोल स्टडी करने के लिए 3 चीजें ध्यान में रखने चाहिए बेटा. कौन सी? बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम डिजीज हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी. जब भी हम क्वांट स्टडी करेंगे ना तो डिजीज नहीं होगी, फॉलो अप स्टडी होगी. उसमें हम जाएंगे फॉलो अप.
तो बाद में देखेंगे कौन सी डिजीज उनको हुई, कौन सी नहीं हुई क्वार्ट में। मीन्स क्वार्ट स्टार्टेड विद द नॉर्मल पर्सन्स, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी क्या है, केसेस एंड रेफरिंग विद द कंट्रोल। Both exposure and outcome have occurred before the start of the study. The study proceeds, हम कहाँ से retrospective study इसको कहते हैं, proceeds backwards from effect to cause. Cigarette smoking effect, cause क्या है, lung cancer. It uses, क्या हम use करते हैं, comparison group, एक comparison बनाते हैं जिसको control कहते हैं, comparison group to support or refute and result are influences. Now, by definition, a case control study involves two populations. One is the cases, other is a control. The unit of the individual rather than the group. Individual group. The focus is on the disease. Focus किस पर है भाई? Disease पर है. Smoking, for example. Smoke या कुछ भी. क्या है focus? Disease पर है. Focus is on disease or some other health problems that the already developed. Case control studies are basically a comparison studies. Case and control must be comparable with respect to non-confounding variables such as age, sex, or factors, age, sex, occupation, and social status. The questions asked, the questions, हम investigation करते हैं. Questions asked related to personal characteristics and antecedent exposures which may be responsible for the condition study. क्या है, हम स्मोकिंग के अगर स्टडी करते हैं तो हम उस पर हम जो है ना क्वेश्चन बनाएंगे और उस पर हम क्वेश्चन लेंगे, उसकी एक डिजाइन पर रखेंगे। द बेसिक डिजाइन ऑफ केस कंट्रोल स्टडी इज 2x2 टेबल और 2x2 टेबल पर हम उसको स्टडी करते हैं। तो बेसिक अभी क्या है, बेसिक स्टेप्स क्या है, केस कंट्रोल स्टडी, दिस इज अ स्टडी अंडरटेकन ऑन इंडिविजुअल्स, दिस इज अ केस कंट्रोल स्टडी टेकन ऑन इंडिविजुअल हु हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द डिजीज। बैकवर्ड स्टडी है, इफेक्ट टू कॉज हम देखते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। कंट्रोल मेथड्स एट 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स। डिजीज होनी चाहिए, स्टडी बैकवर्ड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें हम कंट्रोल ग्रुप जो है ना यूज करते हैं, क्या कंट्रोल ग्रुप, हम कंपैरिजन के लिए कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। सो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स बेटा क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड में एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या मतलब देखता है, अकरेंस ऑफ डिजीज को इन्वेस्टिगेट करता है कि पॉपुलेशन में डिजीज कैसे हुई, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में डिजीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 किस्म की स्टडीज होती हैं। एक तो बेटा होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स। जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है उसमें तो एक डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती है, दूसरी एनालिटिकल स्टडी होती है जिसमें इकोलॉजिकल स्टडी उसको कोरिलेशन बनाते हैं वो तो, और दूसरी एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी, वन प्रिवेलेंस स्टडी, उसके बाद एक केस कंट्रोल स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद एक कोआर्ट स्टडी। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल जिसमें कम्युनिटी ट्रायल्स करते हैं, फील्ड ट्रायल करते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं। उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम डिस्कस करते हैं, हमने डिस्कस किया है सिंगल एग्जामिनेशन जाके दे रहे हैं, किसी भी पॉपुलेशन में कोई ब्लड प्रेशर है ज़्यादा है तो उसका हम रिलेशन देखेंगे, चेन देखेंगे, उसकी पिछले 10 दिनों की या 8 दिनों की डाइट देखेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन इसमें निकाला गया डाइट के हवाले से साल्ट के साथ, तो क्या हुआ, साल्ट जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, अगर उसका रिलेशन हमने निकाल दिया तो उनको हम कहेंगे भाई इसको प्रिवेंट करने के लिए कि साल्ट इंटेक आप कम करें तो उसका प्रॉब्लम कम हो जाएगा, मीन्स इन्वेस्टिगेशन। देन दिस इज अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। उसके बाद होती है एनालिटिकल स्टडीज। एनालिटिकल स्टडीज में 2 टाइप की स्टडीज होती हैं, केस कंट्रोल स्टडी होता है, दूसरा कोऑर्ट स्टडी होती है। हम दोनों में देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन, हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, वो एग्जिस्ट होती है नहीं है, अगर है
तो उसकी ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन कितनी है, ताकत कितनी है। उसमें केस कंट्रोल स्टडी है। केस कंट्रोल जो स्टडी है, प्राम स्टडी क्या है, इफेक्ट टू काज। इसमें डिजीज होती है, ऑलरेडी डिजीज हो गई है, उसका हम कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे, वो उससे हम कंपैरिजन करेंगे, उसकी हम असर्टेन करेंगे बिहाइंड द चेन हाउ दैट पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड अ कैंसर और डिजीज, the other persons are still not taking such type of the disease. So this is called as a case control study. इसके लिए कुछ हैं चीज़ें हैं, बेसिक स्टेप्स हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं। एक्सपोयर एंड आउटकम में डिजीज होना ज़रूरी है। दूसरा बैकवर्ड हम स्टडी उसको देखते हैं कि उसका हिस्ट्री लेंगे इफेक्ट टू काज के हवाले से। उसमें एक कंपेरिजन ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। बाय डेफिनेशन 2 पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। इसमें हम कंपैरिजन करें, देखते हैं 2/2 की टेबल है जहाँ पर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्टेप्स अबाउट द केस कंट्रोल स्टडी। आप थोड़ा केस कंट्रोल स्टडी को पढ़ें भी, उसके बाद बिल्कुल आपको समझ में इजी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा क्रॉस सेक्शनल प्रिवलेंस स्टडी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वेलकम सर। Thank you very much. थोड़ा सी प्यार से डाटा